Then what world language credit assessment patterns means what is what is our pattern of world language credit assessment. So Texas state recognized the advanced agency. There are so many agencies who conduct these language exam, but the Avant agency, this is Texas state recognized this agency to conduct the world language assessment through the school district for student of grade 7 to 12. It is totally independent of the school curriculum. This assessment is available in 15 languages, including multiple Hindi Indian languages like Hindi, Telugu, Punjabi, Marathi, etc. Assessment also carried out by Event Agency is accepted for college credit by American Council on Education. Event Agency follow bilingual assessment on 4 skills of the languages. These 4 skills are reading, writing, listening, and speaking. So approximately 30 MCQs. MCQ is multiple choice questions. 30 multiple choice questions in reading section and 30 in listening section. And there we are having 3 prompt in speaking and writing skill. Event STEM tests are not time bound, and the student may pause and resume the assessment at any point. So let's take all 4 skills one by one. The first I'm taking the skill which is speaking. Here I am taking the example in the reference of Hindi, as my subject is Hindi. So I'm taking some mock test sample paper of Hindi. So here the student will be given a prompt on topic to record their views for 3 minutes. Only 3 minutes is given for recording via microphone. Student can check his or her recording via microphone and submit the same. Each speaking section is limited to 3 minutes and only one chance to re-record the response and one chance to add the record. Only one chance it will be given. जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक मॉक टेस्ट पेपर है यहाँ जो कि मैंने आप इवेंट की वेबसाइट से ही लिया है. इसमें ये बताया गया है कि एक भारत से आई हुई एक ट्रेवलर हैं, एक यात्री हैं, उनसे आप मिलते हैं. मतलब ये स्टूडेंट को कहा गया है कि उनसे आप मिल रहे हो तो आपको उस रेस्टोरेंट के आपके जिस जगह पर आप रह रहे हैं वहां के बारे में आपको कोई भी 2 रेस्टोरेंट के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है. तो डिस्क्राइब क्या करना है आपको, आपके थॉट्स आप उनको क्रिएट करने हैं और उसको आपको बोलना है. ये स्पीकिंग पार्ट में होता है. तो 3 मिनट में आप कितना बोल सकते हैं ये यहाँ पर डिपेंड करता है. ठीक. अच्छा, नेक्स्ट इज लिसनिंग पार्ट. Next skill is our listening part. Okay. So in the listening, student listen a variety of recorded audio prompt via headphones. It may be including conversation, announcement, and instructions. Each prompt is followed by multiple choice questions and designed to assess their comprehension. Again 30 multiple choice questions होते हैं, इसमें भी 30 multiple choice questions होते हैं listening section में भी. और सब हर क्वेश्चंस के साथ 4 इनके ऑप्शंस होते हैं, आंसर होते हैं जिनको टिक करना होता है. जैसे एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास. सारी पुरानी किताबें, डीवीडी और मैगजीन बेचेंगे. किताबें 50. सुनाई दे रही है आवाज अभी आपको सभी को? हाँ हाँ. अच्छा, देखिए इसमें इस तरह का एक लिसनिंग टॉपिक है. तो इसमें ये बताया जाता है कि एक लाइब्रेरी है, शहर की लाइब्रेरी है, उसमें उनकी सेल लग रही है. तो उसी के अकॉर्डिंग उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो उन्हीं पर आंसर टिक करना होता है, करेक्ट आंसर. अच्छा, इसमें जो पूरा लिसनिंग क्लिप्स होती हैं 3 to 4 लिसनिंग क्लिप्स होती हैं और 30 MCQs होते हैं.
जो क्लिप्स होती हैं उनको सुनने के बाद ये सारी जो होता है वो हिंदी में, जो भी लैंग्वेज आपने चूज की उसमें होंगी, लेकिन क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में ही होंगे। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसमें कि इंग्लिश क्वेश्चंस, जो इंग्लिश क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। इसी तरीके का पैटर्न मैंने अपने हिंदी सेक्शन में इंक्लूड किया है। जैसे कि ये मैं आपको सुनवा देती हूँ, बिल्कुल सेम इसी टाइप के ही हैं हमारे पास। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकें रखने का कक्ष। हर स्कूल और कॉलेज में पुस्तकालय होता है। पुस्तकालय में न केवल किताबें होती हैं, बल्कि इसी तरह की क्लिप्स है मेरे पास जो मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, क्लास में ही इनकी प्रैक्टिस होती है, और इस तरह से उनको फिर क्वेश्चंस करने होते हैं स्टूडेंट को। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिसनिंग। नाउ कम टू द आवर रीडिंग। तो रीडिंग जो है, इसमें फिर अगेन अनसीन पैसेज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक सैंपल दिखाया गया, अनसीन पैसेज होंगे। ये सारे पैसेज जो हैं रियल वर्ल्ड टॉपिक से कनेक्टेड रहते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ को रिलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक भोजन डिलीवरी सेवा का यहाँ पर एक पैम्पलेट दिया गया है। उसमें उसके जो भी उसमें पैराग्राफ में आपको उस पैराग्राफ को रीड करना है स्टूडेंट को, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, और उसके कुछ उसी के 4 पॉसिबल आंसर होते हैं। तो ये अनसीन पैसेज की तरह आते हैं। 4 to 5 पैसेज होते हैं और 30 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और ये हमेशा सिंपल फ्रेजेस से स्टार्ट हो करके फिर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ये आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे उनका लेवल स्टूडेंट का बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये आगे इनका इसका भी लेवल बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो सेक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई पेरेंट्स भी मुझसे पूछते हैं इसके बारे में। इसमें क्या है, स्टूडेंट को 3 प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं। जैसे प्रॉम्प्ट्स के बारे में जैसे हम बोले कि इस तरह का एक आपको क्लू दे दिया है, और उस क्लू को लेकर आपको पूरा वर्णन करना, पूरा एक्सप्लेन करना है आपको। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर राइटिंग का। इसमें क्या बताया गया है कि एक वीकेंड में एक जो फ्रेंड है वो दूसरे फ्रेंड को ईमेल लिखता है कि आप अपना वीकेंड कैसे आप कैसे इसको स्पेंड करते हो वीकेंड को, है ना, बच्चों का। तो वो अब अपने फ्रेंड को पूरा डिस्क्राइब करेगा कि वीकेंड पर वो क्या क्या एक्टिविटी करता है। सो देखिए, इमेजेस भी दी गई इसी टाइप की इमेज। तो इमेज फॉर्म बताते हैं, तो इमेज से भी बच्चों को काफी आइडिया लगता है। वो थॉट्स उनके आते हैं, थॉट्स डेवलप होते हैं, वो अपने से फिर वो अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन। यहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड होता है जिसमें इंग्लिश के लेटर में हिंदी टाइप करनी होती है। जैसे मेरा लिखना है मुझे, तो MERA लिखना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली मेरा इसमें आ जाएगा। लेकिन अगर बच्चे को ये क्लियर नहीं है कि MERA लिखने से मेरा ऐसे स्पेलिंग मेरा बनता है, तो वो ये चीज टाइप नहीं कर सकता। अब मेरे कोर्स में क्या बेनिफिट है कि मैं बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो वहां साउंड पर सबसे ज्यादा फोकस होता है। हर एक लेटर के साउंड पर फोकस जाता है यहाँ पर। जब लेटर के का साउंड बच्चों को क्लियर होता है, तब वो बहुत आसानी से वर्ड भी बना लेते हैं, और जब टाइप करते हैं तो बिल्कुल करेक्ट उनका वर्ड बन के आता है। तो ये एक बेनिफिट है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि जब राइटिंग करते हैं तो उसकी एक लिमिटेशन होती है कि 2500 कैरेक्टर्स या 400 to 500 वर्ड्स के लिमिटेशन में ही आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन देना है राइटिंग वर्क पर। ओके।